विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्नां भव सर्वदा. Hari Om. Yesterday we saw different types of arthritis related to elbow joint, and day before yesterday uh, anatomy, somewhat physiology, different soft tissue related disorders, radiology. That's all. That's all we saw in our lecture. So today we will be going through some clinical tests and in short Samprapti plus Chikitsa of uh, related to elbow joint. Now this is the test which is related to stability of elbow, which checks the stability of the elbow. Now examiner holded this wrist and elbow in left and right hand. Now patient is instructed to flex his elbow to say 30 or 40 degrees, while examiner forces patient's forearm laterally outside, producing valgus stress on joint's medial side. Now the test is repeated to produce varus stress on joint's lateral side. So lateral side and medial side, the examiner is pushing the forearm with the help of valgus and varus stress. You can see examiner's right hand. With the help of left hand, he is stabilizing the elbow, and with the help of right hand, he is abducting and adducting the forearm. In the positive test, gap is produced on the medial side during valgus stress. This indicates medial collateral ligament instability. In case of knee joint also, we have seen this type of test. If a gap is produced on lateral side during varus stress, then it indicates lateral collateral ligament instability. In case of knee joint also, you get abduction and adduction test, which is positive in case of fibular and tibial collateral ligaments. The test is performed on both sides, and the involved side is always compared with uninvolved side. So this is the significance of ligamentous stability test. This is a very common test which is done by every physician related to tennis elbow. We have seen a case related to tennis elbow. In this particular test, examiner will flex patient's elbow up to say around 90 degree. He will stabilize his elbow with one hand, and he will place thumb of other hand over lateral epicondyle, anterior side of lateral epicondyle. Patient is why? Because that is origin of extensor group of muscles. Now patient will be instructed to extend his wrist, while
examiner will resist the movement. You can see both the arrows related to the pressure examiner is giving. In this particular case, pain is produced in common extensor tendon at lateral epicondyle, which indicates lateral epicondylitis, that is tennis elbow. In tennis elbow, we have seen we can use Mahavat Vidvams. Cozen test. So, this is also related to tennis elbow only. Same like tennis elbow test, you have to take position. Patient should be instructed to make a fist, pronate the forearm, and radially deviate and extend the wrist, while examiner will resist that movement. You have to make a fist, you have to pronate the forearm, then you have to laterally deviate. You have to radially deviate, that is inside, radially deviate and extend the wrist, while examiner will resist the movement. In this case, sudden severe pain is produced in lateral epicondyle area, which indicates lateral epicondylitis. So, this is also related to tennis elbow. Now, like lateral epicondylitis, there is one more disease known as golfer's hand or golfer's elbow, that is medial epicondylitis. All flexor group of muscles originate from this particular area. In this case, examiner will hold patient's arm with one hand. Now, patient will be instructed to flex the wrist, while this is in supination only. Previous test it was in pronation, and in this case you have to flex the wrist, while doctor will resist the movement with other hand. In this particular test, a common flexor tendon at medial epicondyle produces pain. So, this indicates medial epicondylitis. In short, medial at the level of medial epicondyle, where thumb is placed by examiner, a patient gets severe pain. So, that is the main, that is the basic test related to it. Elbow flexion test. In this case, you have to hold fully, you have to flex the elbow, and you have to flex the wrist also, and you have to hold this position for 3-4 minutes. If you get tingling numbness or say paresthesia for that last 2.5 fingers, then it is related to ulnar nerve distribution. There must be some problem, some pathology related to ulnar nerve. Simple test, it is pinch grip test. You have to pinch the tips of index finger and thumb together,
In this case, patient has an abnormal pinch of index and thumb instead of tip to tip pinch. Maybe he will do like pulp to pulp. This is known as pulp to pulp. And you have to instruct the patient tip to tip pinch. This indicates pathology of anterior interosseous nerve, and that is related to median nerve. If median nerve or a branch of median nerve is affected, then the pinch will be pulp to pulp. That is, total one purv is involved. If it is not injury related to median nerve, then tip to tip pinch can be done. In this test, now you can see how examiner is doing test with reflex hammer. Now you have to gently tap the groove between olecranon and medial epicondyle with this hammer. In this case, if patient experiences tingling, paresthesia to last 2.5 fingers, then it is always compression of ulnar nerve. It is related to ulnar nerve distribution. So these are some tests related to elbow joint, and these are simple tests for Kurpar Sandhi or elbow joint. Yesterday only we talked about the radiology of elbow joint. Now, in this particular case, if a patient comes to you with say injury to elbow joint, then in which position you have to place the elbow. Elbow every time must be placed like supine with elbow at 90 degree. Always remember, it should be right hand should be just above the 90 degree. That is, say just 10 to 15 degree. And in case of left elbow, it is just below 90 degrees. It should be more than 90 degrees. You should not try to overflex these elbow joint, and then you have to ask for ulnar nerve. You have to check for ulnar nerve distribution or any other, or you have to perform all the tests related to it, and after that you have to give elbow braces and arm pouch for further management. In case of say samprapti of this particular joint, every time I talk about this samprapti only. But remember, my friend, it is time tested samprapti, and you can use it in all the joints. हर बार अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए मैं इस संप्राप्ति को वापस दोहराना चाहूंगा, क्योंकि you should understand this thoroughly. So I am telling you, पोष्य पोषक न्याय, पोष्य दोष एंड पोषक दोष, ये हमें
देखना होगा। अभी दो तरह के वायु है। एक वायु है जो अवस्थापाक में तैयार होने वाला है, जो पूरे शरीर स्थित अलग अलग व्याधियों को अलग अलग व्याधियों को अलग अलग जगह के अलग अलग स्थानों के वात का पोषण करता है। और बी वायु जो है वो विगुण स्थान है। यहाँ पर बी वायु जो है वो कूर्पर संधिगत वात है। अभी यहाँ पर मिथ्या आहार विहार या जो भी कारण हो जिसकी वजह से ए वायु दूषित होता है, फॉर एग्जाम्पल से सार्वदेहिक संप्राप्ति में ए वायु की दृष्टि होती है। अभी बी वायु में ऑलरेडी स्थान वैगुण्य है। एल्बो जॉइंट में पहले से थोड़ी सी वातवृद्धि है, पर वो वातवृद्धि इतनी नहीं है कि जिससे व्याधि उद्भव, विकार उद्भव या रोग उद्भव हो सके। रोग उद्भव होने के लिए दोष चाहिए, आम चाहिए, अग्नि मांद्य चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे कि पिछली बार भी मैंने कहा था, एक गली में एक गुंडा है और एक शहर का गुंडा है। गली का गुंडा जो होगा वो तब तक गुंडागिरी नहीं कर सकता जब तक उसे कोई बड़ा सपोर्ट ना हो। ये गली का गुंडा जो है वो है कूर्पर संधिगत वात, और जो शहर का गुंडा है, जो गली के गुंडे को सपोर्ट कर रहा है, उसको वेपन्स दे रहा है या और कुछ भी सपोर्ट कर रहा है, दैट इज ए वायु, सर्व शरीरगत वायु। ऐसे दो अलग अलग वायु इसमें दिखाई देते हैं। इन दोषों का स्वस्थानी संचय होगा ए वायु का, और उसका चय प्रकोप प्रसर होने के बाद संग होकर व्याधि निर्मिति की ओर ये चलेगा। ये जाता है बी वायु के पास। ए जो वायु है दैट इज अवस्थापाक में तैयार हुआ वायु है, जो बाकी वायुओं का पोषण करेगा, वो बी वायु के पास जाता है। और वहां पर विगुण स्थान जो है वहां पे वात का संचय प्रकोप, ये बी वायु का मतलब कूर्पर संधिगत वायु का चय प्रकोप प्रसर संग ये हो जाता है। और उसके बाद इन दोनों की शक्ति मिलकर बी वायु दूषित होता है और रोग की व्यक्ति होती है। एल्बो जॉइंट कूर्पर संधि में पेन, वेदना, स्तब्धता, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये होने लगता है और हमें रोग निर्मिति दिखाई देती है। वहां पर संप्राप्ति पूरी है ऐसा दिखाई देता है। अब इन वायुओं की अलग अलग चिकित्सा हमें करनी होगी। अगर हम ए वायु के तरफ देखें तो उसमें हमें फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ के चलते हैं कि कूर्पर संधिगत शोथ है पर पेशेंट आमवात का है। अगर पेशेंट आमवात का है तो आपको सर्व शरीरगत दोष दुष्टि दूर करने हेतु ट्रीटमेंट करनी होगी। उसके लिए विरेचन हो, लंघन हो, विरेचन हो, बस्ती हो, अलग अलग तरह के बस्ती हो, क्षार बस्ती हो, वैतरण हो, इस तरह की चिकित्सा ये करनी पड़ती है। ये सब होने के बाद विगुण वात चला जाने, वहां से निकलने के बाद एक आशय, ये रिक्त आशय तैयार हो जाता है जिसमें हमें वैशिष्ट्यपूर्ण बस्ती लाइक तिक्तक्षीर हो, राजयापन बस्ती हो, इस तरह के बस्ती देने हैं, जो देने के बाद वहां पर रिक्त स्रोतों की चिकित्सा हम कर सकते हैं। सो इस तरह से ए वायु की चिकित्सा हमें करनी पड़ती है। अगर ये कफ संसृष्टता रही तो 8 दिन का योग बस्तिक्रम काफी हो जाता है। पित्त संसृष्टता रही तो 16 दिन काल बस्तिक्रम, और ये अत्युग्र वात में 30 दिन तक कर्म बस्तिक्रम हमें करना पड़ता है।
तो इस तरह से हमें बस्ती कितने देने हैं, क्या है, ये सब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करके देखना पड़ेगा। बी वायु, यहाँ पर स्थानिक वातज्ञ चिकित्सा हमें करनी होगी। स्थानिक वातज्ञ चिकित्सा को बहुत ही महत्व है आयुर्वेदिक क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स आयुर्वेदिक चिकित्सा में। अलग अलग आप जितनी अच्छी स्थानिक चिकित्साएं करोगे उतना ही आपको उसका फायदा दिखाई देगा। दाह हो, अभ्यंग हो, शोथहर लेप, स्वेदन, गुग्गुलवादी अलग अलग लेप, उत्कारिका, उपनाह, वेष्टन, अग्निकर्म, बंधन, ऐसे अनेक चीजों का प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो बहुत बार पैरा सर्जिकल जो प्रोसीजर्स है आयुर्वेद में, जिससे इमीडिएट वेदना कम हो सके, ये करनी जरूरी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अग्निकर्म, विद्ध कर्म, जलव का वचरण, ये हम बहुत ही फास्ट ये कर सकते हैं। शमन चिकित्सा में मैं 3-4 खरलीय रसायन जो मैं बहुत यूज करता हूं वो बताना चाहूंगा। कभी भी ट्रोमा है, माइक्रो ट्रोमा है और फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, फिर भी लिगामेंट इंजरी है या सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, सिर्फ ये आपको दिखाई देता है, तो आप जरूर उसमें रस सिंदूर का प्रयोग करें। रस सिंदूर हमेशा सूक्ष्म कर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। रस सिंदूर ऐसे वक्त माइक्रो ट्रोमा जब हो तो उसमें मराठी में उसे मुका मार कहते हैं। इन केस ऑफ माइक्रो ट्रोमा यू कैन यूज रस सिंदूर along with सारिवा। In chronic cases, in acute or subacute cases, use rasa sindur along with devadar, and that works wonderful. Hardly 62.5 milligram of rasa sindur along with 500 milligram to 1 gram of devdar, and devdaru plus rasa sindur works wonderful in these cases. If the injury is severe, moderate to severe, then think along with Rasa Sindur, think of Yogaraj Gugul and Mahabhat Vidvans, or Yogaraj Gugul and Ekangavir, that is 62.5 milligram Rasa Sindur plus 125 milligram of Mahabhat Vidvans plus 250 milligrams of Yogaraj Gugul along with Godanti Bhasma. We give it along with Godanti Bhasma. So that also works wonderful in case of trauma. In case of sprains also, it works wonderful. रस सिंदूर ये मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, बिकॉज बहुत अलग अलग जगह से यहाँ पर स्टूडेंट जुड़े हैं और हर जॉइंट के लिए बहुत अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। वापस वही, वो है कफस्थानगत कफदुष्टि हो तो आप रस सिंदूर का प्रयोग करें। कफस्थानगत मतलब कोई भी जो संधि है वो कफस्थान है, उसमें कफदुष्टि रही, पूय दुष्टि रही, कफ प्रधान अवस्था रही, गौरवादी लक्षण रहे, शैत्य ये लक्षण आपको दिखाई दे, स्तब्धता, तो आप उसमें रस सिंदूर का प्रयोग करें। इन केस ऑफ वात प्रकोप, कफस्थान है पर वात प्रकोप है, तो आप उसमें समीर पन्नग का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मल्ल सिंदूर
अलग अलग रूमेटॉइड आर्थराइटिस की केसेस में आप हमेशा एक चीज याद रखें, इफ अ पेशेंट इज स्टीरॉयड डिपेंडेंट और पेशेंट इज ऑन DMARDs, डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, तो इस चीज में अगर वो उस पे है तो वो धीरे 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 कम करने हैं, टेपर करके निकालने हैं, और फिर आपकी मेडिसिन काम बहुत ही अच्छा कर सकती है, उम्दा काम कर सकती है। स्टीरॉयड डिपेंडेंसी कम करने के लिए दो चीजों के आप प्रयोग कर सकते। सबसे अच्छा प्रयोग उसमें गुडुचि का होता है। आप आपकी तरफ से डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट के नाम पर गुडुचि को दे सकते हैं। गुडुचि कैसे देनी है वो हर वैद्य अलग अलग दे सकता है। समीर पन्नग ये कफ स्थानगत वातदुष्टि कम करने के लिए दिया जाने वाला एक वंडरफुल ड्रग है। We use it many times and we use it in many cases. अगर आप समीर पन्नग का प्रयोग समीर पन्नग सूक्ष्म करके देना चालू करें, समीर पन्नग along with पुष्कर मोर, समीर पन्नग along with different types of गुग्गुल also, then it will be very much useful. समीर पन्नग ये कैशोर गुग्गुल के साथ अगर आप खल करके इसको दे सकते तो ये काफी अच्छा रिजल्ट आपको उसमें मिल सकता है। मल्ल सिंदूर ये काफी उष्णकल्प है, इसीलिए आप मल्ल सिंदूर सबसे पहले सूक्ष्म कम मात्रा में यूज करना चालू करें। कॉन्फिडेंस आने के बाद आप उसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हो। मेनी स्टीरॉयड डिपेंडेंट केसेस में बहुत बार पित्त प्रधान दोष दृष्टि दिखाई देती है, उसमें आप मल्ल सिंदूर का प्रयोग ना करें। परंतु अगर आपको वात प्रधान दोष दृष्टि मिले, पित्त के बजाय आपको वात प्रधान दोष दृष्टि मिले, तो मल्ल सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। वात गजांकुश, महावात विध्वंस, ये आपको मालूम है, मैं हर बार इसके बारे में बोलता हूं, पर ये काफी प्रभावी ड्रग्स है। सुवर्णराज वंगेश्वर मैं सायन में सीखा हूं और सायन में बहुत बार सुवर्णराज वंगेश्वर यूज किया जाता है। अगर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी रही या पेशेंट कम्स टू यू विद क्रॉनिक सिस्टाइटिस along with rheumatoid arthritis, a patient comes to you with inflammatory arthritis along with chronic cystitis, a patient comes to you with diabetes plus inflammatory disorder, then start using Suvarnaraj Vangeshwar as a drug of choice along with Chopchini. How to use it? It should be 62.5 milligram plus 500 milligrams of Chopchini 3 times a day. For how many days? 7 days to 15 days. Chronic cystitis इससे कम हो जाता है। Chronic cystitis में काफी अच्छा रिजल्ट इसमें दिखाई देता है। मूत्रवह स्रोतस में को बल्य, अगर आप दोषपाचक प्लस बल्य ऐसे आप कल्प यूज करो तो इट वर्क्स वंडर इन दिस टाइप ऑफ केसेस। मेनी अ टाइम्स बहुमूत्रता along with निद्रा विपर्य प्लस आमवात ये पेशेंट में दिखाई देता है। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ लंघन आदि, पाचन आदि या और आपकी चिकित्सा अवस्थानुरूप होने के बाद या होने के साथ आप सुवर्णराज वंगेश्वर चोपचीनी के साथ देना चालू करें। जॉइंट पेन तो कम होगा ही, सिस्टाइटिस तो कम होगा ही, परंतु पेशेंट का दौर्बल्य भी कम होने लगता है। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत बार आपको अलग अलग ये दिखाई दे, टेंडिनाइटिस हो या लिगामेंट इंजरीज हो, इस सभी में आपको ट्रीटमेंट देने के लिए अलग ट्रीटमेंट सोचनी पड़ती है, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज समवट वेरी डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द पैथीज। आपको ए वायु और बी वायु दोनों को देखना पड़ेगा। तो ए वायु की चिकित्सा और बी वायु की चिकित्सा इस सब में आपको करनी होगी।
ये अगर आपको करनी है तो आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए आप ए वायु की कब और बी वायु की कब चिकित्सा करते हो। मेनी अ टाइम्स स्थानिक दोष दृष्टि कम करने हेतु आप लोकल अलग अलग ट्रीटमेंट्स जो करते हो दैट इज फॉर बी वायु। अभी ग्रहणी दृष्टि है, उसके साथ साथ आपको टेंडिनाइटिस है। अगर आप पेशेंट का उदर परीक्षण अच्छी तरह से करते हो तो आपको तुरंत समझ अलॉन्ग विथ हिस्ट्री आपको तुरंत समझ में आता है कि इसे ग्रहणी दृष्टि है। उदर परीक्षण में भी आपको टेंडरनेस समझ सकता है। हर पेशेंट का आप उदर परीक्षण करना चालू करो, एक 10-15 पेशेंट करने के बाद आपको अपने आप उदर परीक्षण आने लगेगा। ये टेंडरनेस है प्लस स्नायु दृष्टि ये दिखाई देता है। बहुत बार आमवात की हिस्ट्री रहती ही है। along with that patient may be having bursitis also, that is local thing, local दोष दृष्टि। अथेरोस्क्लेरोटिक उसके हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा। स्ट्रोक की हिस्ट्री भी हो सकती है। मांस शैथिल्य जिसमें फ्लैसिडिटी ऑफ मसल्स आता है, इस सब में आपको नाड़ी बल विवर्धनार्थ अग्नितुंडी का प्रयोग हम काफी अच्छा कर सकते हैं। इट इज मेनली रिलेटेड टू आमवात, पर आमवात में इस तरह की अगर क्लिनिकल कंडीशन हो तो और तो ही आप इसकी ट्रीटमेंट इस तरह से कर सकते हो। अमृतार्णव सामदोष प्लस मनोदोष प्लस मंदवेगी ज्वर है। मंदवेगी अगर ज्वर है बहुत दिनों से है तो लीन दोष हुए है, ये आप समझ लीजिए। पेशेंट इज ऑन डीमार्ट्स, पेशेंट इज ऑन डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स, तो दोष लीन हुए है ये आप समझ ही लो। सामदोष है प्लस मनो विगुणता ये भी उसमें दिखाई देते हैं। तो इसमें आप अमृतार्णव का प्रयोग कर सकते हो। अगर सामदोष है पर मंदवेगी नहीं, तीक्ष्ण वेगी ज्वर है पर कफ प्रधान है, 101 टेम्परेचर रहता है, मतलब इतना भी तीक्ष्ण नहीं, तीक्ष्णतम में 104 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। ऐसे में आप त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग ये कर सकते हो। हिंगुलेश्वर रस बहुत ही उष्ण ऐसा कल्प है। तीव्र ज्वर उसके साथ साथ संधिशूल हो, पोस्ट वायरल आर्थ्रोपैथी, चिकुनगुनिया, इस तरह के व्याधि अगर है तो स्टार्ट विथ हिंगुलेश्वर रस। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हिंगुलेश्वर रस का प्रयोग करें। आमवात है उसके साथ सूती का ज्वर है, एसो टाइटर पॉजिटिव हो सकता है, थिंक ऑफ प्रताप लंकेश्वर एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अगर सूती का जन्य अवस्था है, पोस्ट नेटल आर्थ्रोपैथी की पेशेंट आपके पास आती है, उसके एल्बो तो सूजे हुए रहेंगे, उसके कुरपर संधि में सूजन रहेगी ही, ऐसे वक्त आप वेदना शमनार्थ प्रताप लंकेश्वर अलॉन्ग विद देवदार वैदिक वात देना चालू करें। तो इस तरह से हम अलग अलग मेडिसिन ये दे सकते हैं। प्रसूति जन्य अस्थिक्षय जो होता है उसमें बहुत बार पुष्पधर्म ये तो इनफर्टिलिटी की मेडिसिन है, ये तो गायनेक की मेडिसिन है, इसका क्या संबंध ऑर्थो की केसेस से? ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता। आयुर्वेदिक मेडिसिन ये बहुत ही अलग अलग ढंग से बहुत ही अच्छा कार्य करती दिखाई देती है। रिकेट्स, फक, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह के पेशेंट अगर आपको दिखते हैं तो थिंक ऑफ मधुमालिनी वसंत एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। लघुमालिनी वसंत ये रस और रक्त धातुओं के पाचन तक बहुत ही अच्छा कार्य करती है, पर आगे जब मांस, मेद और अस्थि तक हमें सोचना होगा तो थिंक ऑफ मधुमालिनी वसंत, जिसे अंडे का जो बलक होता है उसकी भावना होती है। तो ये बहुत ही सुलझा हुआ एंड वन ऑफ द फैंटास्टिक ड्रग्स मधुमालिनी वसंत, ये नूतन फ्रैक्चर हुए पेशेंट्स को हम देते हैं अलॉन्ग विथ लाक्षादी गुगुल और अलॉन्ग विथ
गंधतेल कैप्सूल. मधुमालिनी वसंत, it enhances osteoblastic activity in the body. So think of Madhumalini Vasanta as a drug of choice in case of osteoporosis, osteomalacia, or osteopenia in case of rickets also. जीर्ण वात विकार अगर होता है तो दो चीजों का ध्यान आप जरूर रखें. संधि वक्रता, कॉन्ट्रैक्चर्स ये आने लगी है तो दो चीजें आप ध्यान रखें. उसमें भी नूतनावस्था हो, शुरुआत हो, आपको मेडिसिन की शुरुआत करनी है रसायन औषधियों की. थिंक ऑफ महालक्ष्मी विलास अलॉन्ग विद ताप्यादि लोग. एंड इन केस ऑफ क्रोनिसिटी थिंक ऑफ सुवर्णमालिनी वसंत एज अ ड्रग ऑफ चॉइस. और उसका काफी अच्छा रिजल्ट ये हमें दिखाई देता है. सो इस तरह से अलग अलग व्याधियों में हम क्या यूज कर सकते हैं ये मैंने दिखाए. यहाँ पर जो हमने 3 ड्रग्स मेन लिए थे, महावात विध्वंस, एकांगवीर और वात गजांकुश, ये हमने पिछले रिस्ट जॉइंट में भी देखा था, पर फिर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में और बताना चाहूंगा. महावात विध्वंस कब यूज करते हैं? जानू, जंघा, कटी, आगे सब अवयव ही लिखे, उसमें लिखा है क्रोष्टुक शीर्षकम स्तंभम शुष्ककम. अगर मसल वेस्टिंग है, शुष्क मसल्स है और उसके साथ वो स्तंभ या लॉकिंग ये आपको दिखाई देता है, देन थिंक ऑफ महावात विध्वंस रस एज अ ड्रग ऑफ चॉइस. In case of mouse शैथिल्य, in case of flaccidity of muscles, think of एकांगवीर as a drug of choice. वात गजांकुश न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहा तो उस चीज में अभी अल्नार नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो थिंक ऑफ वात गजांकुश एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल हैम्पर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो इस तरह से अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन ये हम दे सकते हैं. वायरल आर्थ्रोपैथी में अभी मैंने कहा था कि प्रताप लंकेश्वर इज वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ चॉइस. वायरल आर्थ्रोपैथी या पोस्ट वायरल आर्थ्रोपैथी, चिकुनगुनिया जो कहते हैं, वो आप उसके लिए संदिग्ध ज्वर पढ़े. संदिग्ध ज्वर में अलग अलग क्वाथ ये दिए गए हैं. संधिशूल, संधिशोथ अलॉन्ग विद तीव्र और मंदवेगी ज्वर, उसके लिए अलग अलग क्वाथ ये दिए गए हैं ग्रंथों में, मेनली इन भाव प्रकाश. सो वी यूज दैट क्वाथ एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पोस्ट वायरल आर्थ्रोपैथीज. पोस्ट वायरल आर्थ्रोपैथी ये बहुत ही उम्दा बीमारी है. बहुत कम उसमें टेंडरनेस रहता है पर स्वेलिंग बहुत नहीं रहती, पेन बहुत रहता है पर स्टीफनेस बहुत कम रहता है. सो इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टीफनेस बहुत रहता है और स्वेलिंग बहुत रहती है. In case of post viral arthropathy, swelling is not that much, but pain is too much in that case. So इस तरह से हमें अलग अलग मेडिसिन ये यूज करने हैं. अनुपान के बारे में मैं आपको एक जरूर बताऊंगा. महारासनादि क्वाथ के अलग अलग अनुपान आपको बताए गए हैं. ये जो महारासनादि क्वाथ के अलग अलग अनुपान है वो आप देख सकते हो. अजमोदा है, एभिः कृतं पिबेत क्वाथम शुंठी चूर्णेन संयुतम कृष्णा चूर्णेन वा योगराज गुग्गुलुना अथवा अजमोदादीना वा अपि तैलेन एरंडजेन वा. इतने अलग अलग अनुपान ये महारासनादि क्वाथ के बताए गए हैं. ये दिस इज ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स. इतना सूक्ष्मतम विचार कर यह लिखते हैं कि हम लोग धन्य हो जाएंगे.
सामावस्था में दिया जाने वाला ये जो क्वाथ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आम परीक्षा के अंदर आप ये देख सकते हो, अगर श्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवानील मूढ़ता आलस्य अपक्ति निष्ठी व मनसंग अरुचि क्लमान, ऐसा वो सूत्र है जो हम सभी को मालूम है रिलेटेड टू आम। अभी बलभ्रंश और गौरव ये आप सामता या निरामता ये डायग्नोस फर्स्ट करोगे, ठीक करोगे। ये करने के बाद अगर बलभ्रंश और गौरव ये लक्षण दिखाई दे तो इट इज रिलेटेड टू श्रोतोरोध। आलस्य ये लक्षण दिखाई दे तो अनिल मूढ़ता है। निष्ठीव इस लक्षण में अपक्ति भूख न लगना ये दिखाई देता है। अरुचि और क्लम इन चीजों में मलसंग ये प्रधान कारण होता है जिसकी वजह से अरुचि और क्लम हमें दिखाई देते हैं। इतना सिंपल वो प्रोटोकॉल है। हाउ टू डिजाइन अ प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। बलभ्रंश और गौरव वाला अगर आमवाद का पेशेंट आपके पास आए जिसको सामावस्था है ये आप समझ लो, तो वो श्रोतोरोध की वजह से है जिसमें योगराज गुगुल ये देना है महाराष्ट्रनादिक्वाद के साथ। आलस्य ये लक्षण आपको दिखाई देता है रुमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रधान, तो वो अनिल मूढ़ता के कारण है ये समझकर आप अजमोदा यह दे देना अलॉन्ग विथ महाराष्ट्रनादिक्वाद। निष्ठीव यह लक्षण प्रायः दिखाई दे तो इट इज बिकॉज ऑफ अपक्ति, गो फॉर शुंठी और कृष्णा चूर्ण। अरुचि और क्लम यह लक्षण दिखाई दे तो इट इज बिकॉज ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ मलसंग। तैलेन एरंड जेन, उसमें एरंड स्नेह का प्रयोग आप कर सकते हो। इस तरह से हमें अलग अलग अनुपान भेद से चिकित्सा करनी होती है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। इस तरह से आप ट्रीटमेंट ये कर सकते हो। इसके बाद मैं पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेता हूं और फिर हम आगे की तरफ जाएंगे और दैट इज शोष रहा तो स्नेह दग्ध देना चाहिए, शूल और शोष रहा तो स्वर्ण दग्ध हम दे सकते हैं। प्रसुप्ति इसमें घृत दग्ध ये बताया जाता है। हम बहुत कम बार हम लोग घृत दग्ध करते हैं। मैं हर बार स्वर्ण दग्ध या रौप्य दग्ध ही करता हूँ। वनस्पतिज में भी हरिद्रा कांड का अग्निकर्म मैंने बहुत बार किया है, बाकी और भल्ला तक का किया है, बाकी किसी का अग्निकर्म ये किया नहीं है। लोह, सुवर्ण और रौप्य ये अलग अलग अग्निकर्म के लिए आप प्रयुक्त कर सकते हो। साइट ऑफ अग्निकर्म ऐसी जगह की जहां पे नीचे स्पंद प्रस्पंद ना हो, आर्टरी ना हो, ऐसी जगह पे आप बिंदास्त अग्निकर्म ये कर सकते हो। सबसे मेरा पसंदीदा जो उपचार है वो है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण ये राजा की तरह है पूरे पंचकर्मों में इन ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस। दूसरा कोई भी पंचकर्म, बस्ती भी नहीं, दूसरा कोई पंचकर्म इस तरह से काम नहीं करता जितना अच्छा वेदना शमन का कार्य ये रक्तमोक्षण करता है। अवस्थानुरूप चिकित्सा में अगर आप रक्तमोक्षण को समझ लो तो नॉन सर्जिकल ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में आप बहुत आगे जा सकते हो। शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्यैहि उपक्रांताश्च ये गदाः सम्यक साध्यान सिद्ध्यन्ति रक्तजाम स्थान विभावयेत्। जो व्याधि शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि विपर्य प्रकारों से चिकित्सा करके ठीक नहीं होते, अलग अलग चिकित्सा करके ठीक नहीं होते, उन्हें रक्तज विकार समझे। रक्त दुष्टिजन्य विकार अगर आप समझते हो
तो आप उसमें रक्त मोक्षण ही करें। आंख बंद करो और रक्त मोक्षण करो। कहां से करो? आजू बाजू की जहां नजदीक सिरा है वहां से सिरा वेदन करो। शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि विपर्य चिकित्सा करने के बाद चिकित्सा करके जो ठीक नहीं होता वो रक्तज ही व्याधि है। रक्तज व्याधियों में रक्त मोक्षण इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अवबाहुक हो, पार्ष्णी शूल हो, वातकंटक हो, विश्वाची हो, अंश शोध हो, कुछ भी हो, कुरपर संधि शोध हो, जानु संधि शोध हो, गो फॉर रक्त मोक्षण। whichever टाइप यू लाइक, गो फॉर रक्त मोक्षण। उसमें अलग अलग बहुत टाइप है, पर उसके डिटेल्स में अभी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बहुत बार उसमें गए हुए हैं और बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन भी इसके साथ हुआ है। अभी इन केस ऑफ ब्रेसेस ये हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं इसके बारे में 5 मिनट बताऊंगा और फिर हम लेक्चर की समाप्ति की ओर जाते हैं। Why braces? Why to use braces? तो और कौन सी ब्रेसेस हमें यूज करनी चाहिए? फर्स्ट इज टू अलाउ टिश्यू हीलिंग। टिश्यू वहां पे हील होने के लिए अगर स्थिरता लाई जाए तो जल्दी हील होते हैं। इट प्रिवेंट्स कॉन्ट्रैक्चर्स, संधि वक्रता, ये प्रिवेंट करने हेतु इसका प्रयोग होता है। इट improves range of motion in a short period of time. It corrects deformities also. अलग अलग स्प्लिन्स है जो लगाए जाते हैं जिसकी वजह से काफी अच्छा फायदा हमें मिल सकता है। इट मे करेक्ट डिफॉर्मिटीज। सिंपल आप स्किन ट्रैक्शन लगाए तो भी फिक्स्ड नहीं होगी, तो फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी कम होने लगती है रिलेटेड टू नी जॉइंट ऑल्सो। इट स्ट्रेंथन्स योर मसल, इट सपोर्ट्स योर मसल्स और इट रिड्यूसेस पेन। इस तरह से ये पूरा ठीक हो सकता है। मतलब ब्रेसेस को बहुत ही इंपॉर्टेंस ये दिया गया है। ये अनोइंग पेन होता है, एल्बो पेन, इट इज वेरी पेनफुल। और अगर आप एक्टिव हो तो आपको तो बहुत ही पेन की वजह से बहुत इरिटेशन होता रहता है। और इन केस ऑफ एल्बो ब्रेसेस ये सपोर्ट तो देगा पर हील फास्ट होने में ये मदद कर सकता है। टाइप ऑफ एल्बो ब्रेस दैट इज राइट फॉर यू विल डिपेंड ऑन व्हाट्स कॉजिंग योर प्रॉब्लम as well as severity of your pain also. So first is elbow band, very simple, like patellar band. Elbow band is there. It treats many conditions, mainly tennis elbow. In case of tennis elbow, go for bandha first, go for elbow band first. There is a small padding inside which is placed at lateral epicondyle, and then you can strap the band. Velcro straps are there. It allows muscle to relax, which reduces stress on the tendons and muscles. Or you can bond for longer period of time with complete comfort also. The second one, this is known as elbow compression sleeve. It provides warmth over the painful area and that assists in healing process, and it reduces inflammation. Many sports person use this type of compression sleeve. Why? Because ये स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं जिससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ये
बहुत ज्यादा रेस्ट भी करते हैं, एक्सटेंसिव वर्कआउट, एक्सटेंसिव वार्म अलोंग विद बहुत ज्यादा रेस्ट, तो ये इसकी वार्मथ कम ना हो, थोड़ी बनी रहे, इसके लिए कॉम्प्रेशन स्लीव ये दिए जाते हैं. It can also be worn to treat, say, golfer's hand, tennis elbow, elbow strain, or arthritis-related joint pain. You can use this type of also. Now, this is copper compression sleeve. There are some copper wires inside the sleeve. They are placed inside the sleeve to generate more heat or more cozy atmosphere for that particular elbow joint, and it works wonder in mainly in case of, say, all types of arthritis, mainly rheumatoid arthritis. So lastly, this is elbow immobilizer. It is mainly designed to protect complete elbow, forearm, and upper arm also. Mainly after surgery, people use it. And the main thing is to protect elbow. It holds the arm at 90 degrees to provide support to injured elbow also. After surgery only, many a times after surgery only it is used, and doctors tells you more about it. This is point of pressure splint. It provides adjustable compression to help absorb and redirect the pain caused by, say, many soft tissue related pathologies, mainly tennis elbow, golfer's hand, tendinitis, etc. This adjustable compression allows a patient to determine where to give pressure and how much pressure to apply. So it will be very much comfortable for patient. This pressure, it doesn't restrict the blood supply. Remember this, this cannot hamper your blood supply. So this is also a very useful, very comfortable pressure point of pressure elbow splint is there, and it protects your muscles, your ligaments, and it heals faster because of 3 POP elbow splint. So these are some information regarding the braces also. There are so many things to discuss, but remember, my friends, though this is just a description related to elbow joint, I would like to assure you that many points are not covered in our day-to-day lectures, in our day-to-day practices. So we are trying to give you something new, something challenging, and something very different, which will be very much helpful to you in your clinical practice. Ayurveda really is a very effective science in case of clinical orthopedics, mainly in case of many non-surgical orthopedic conditions. Ayurveda works wonder. So be with us. Let us discuss some different cases. Try to be very much simple in your clinical practice, in your treatments, and you get very good result with the help of pinpoint correct diagnosis.
Thank you all. Thank you all for patient hearing. And here we announce that elbow joint is over. Next time we will come across with a different joint. Swarna Malini Vasanta. How to use Suvarna Malini Vasanta? We use Suvarna Malini Vasanta as a drug of choice in case of rheumatoid arthritis. If a patient comes to you with, say, Daurbalya plus Agni-mandya, etc., in this case, if it is not Nutan Avastha, it is subacute stage or it is chronic stage, patient comes to you in that state with Sandhi Vakrata, then you have to give him or her disease modifying agent. You have to give him Agni Vruddhikar medicine plus Vatahar medicine plus Rasayan medicine. So, because he will not tolerate Langan, in that case, use Suvarna Malini as a drug of choice. How to use Suvarna Malini? Suvarna Malini is to be used along with, we use it along with Tappyadi Loha and any Vanaspatija Churna like Sariva, Guduchi, etc. Suvarna Malini say Suvarna Malini say 62.5 milligram plus Tappyadi Loho 125 milligram plus Sariva or Guduchi 500 milligram. Many a times we use Chokchini also, but we use Chokchini along with Suvarnaraj Vangeshwar. But along with Suvarna Malini also, we use it. So, when we will discuss spine, mainly lumbar spine. I will be taking care of Suvarna Malini, Suvarna Bhupati, then Rasaraj Ras and Bruhatvat Chintamani. How to use these 4 drugs? I will be telling at lumbar spine. So, thank you all. Thank you all for patient hearing.